Hey guys, welcome to another video. So since Hacktoberfest is around, I participated in Hacktoberfest last year and I had actually successfully completed it. And उस टाइम पे मैंने February के आसपास मैंने रिकॉर्ड किया था एक वीडियो जिसमें I was basically showing my contributions that I did for Hacktoberfest 2020. And so I'll be putting that clip after this video. But let me first start with what Hacktoberfest is and why is it for everyone who's interested in open source or is planning to aim for other open source programs like Google Summer of Code, GSoC, or some other programs basically. So why Hacktoberfest can be a good start? First of all, Hacktoberfest is a month-long open source program in which is held in the month of October. अभी चल रहा होगा वो, in which you basically contribute to a lot of repositories, and if you make 4 pull requests, they give you these swags. So yeah, these are the swags which Hacktoberfest gives you, and it's a really good motivation. तो मेरा second year तब start हुआ था, and तब मुझे था कि भाई एक T-shirt मिल जाएगी, इतने सारे stickers मिल जाएंगे. So it's a really good motivation, and you just need to create 4 pull requests. Now, if you don't even know what a pull request is, what git GitHub, how git GitHub works, and कुछ idea नहीं है, तो भी तुम्हें काफी फायदा होगा because you will learn the process behind. Yeah, so I'll be talking about the contributions that I made as a part of Hacktoberfest 2020. Now note that कि मेरा second year तब just शुरू हुआ था, and उस time पे मेरे कुछ खास technical skills नहीं थे, like Python आता था basic सा, and design आता था because YouTube का थोड़ा बहुत start किया था मैंने. अब so I was like कि चलो क्या होता है, and I was really interested, like I was really excited about open source क्या होता है. So like as I told, Hacktoberfest became a good stepping stone, like the good first step, because उसने मुझे काफी कुछ सिखाया. This was the first organization that I was contributing to, which is Live Sync Python. As I told कि मुझे Python अच्छे से आता था, बेसिक सब exactly डिक्शनरी क्या होती है, लिस्ट क्या होती है, सब पता था, and except DSA वाला part वो सब नहीं आता था, but basics आता था. तो I was looking for simple issues, but you also kind of get accustomed to, you kind of understand the whole process of contributing कि pull request कैसे होती है, फिर उसको repository को fork कैसे करना है, फिर अपना कोड डालो and पुल रिक्वेस्ट भेजो, फिर वो मर्ज होती है, और फिर मर्ज नहीं होती तो फिर तुम्हें प्रॉब्लम्स भेजते हैं, फिर टेस्ट केसेस पास होते हैं बहुत सारे, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, उसको तुम्हें धीरे धीरे समझ में आती है इफ यू आर न्यू टू ओपन सोर्स. एंड दिस वाज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट आई kind of contributed to, and they are basic Python programs, anagram, make a simple calculator, geometric calculator, Fibonacci series. But this wasn't something which was really really exciting. So I think I just made 1 or 2 contributions, and then I was like कि नहीं, ये तो मतलब basics है, कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, तो कुछ नया करते हैं. Then I came across this organization which was called S Buttons, and basically Hacktoberfest labels. तो मैं बताता हूँ पहले सर्च कैसे करना है, ठीक है. जैसे मैं पहले जाता हूँ अपने प्रोफाइल पे, बेसिक सा बनाया मैंने, एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो मी, देन यू विल काइंड ऑफ नो कि मैं क्या क्या कंट्रीब्यूट कहाँ कहाँ कर रहा हूँ. सो यू कैन ट्राई फॉलोइंग मी ऑन गिटहब, बट आई विल टेल यू कि एग्जैक्टली होता क्या है. तो जैसे इश्यूज में जाओ, इसमें गए, ठीक है, एंड उसमें यहाँ पे जाके लिखो लेबल, एंड उसमें लिखो हैक्टोबरफेस्ट. तो जैसे अभी तो काइंड ऑफ अभी तो फरवरी का महीना चल रहा है, तो इतने कुछ खास होंगे नहीं, बट अक्टूबर के स्टार्ट में बहुत सारे ऐसे होंगे जिसमें देखो जैसे भी 39,000 ओपन है, तो सोच लो लाइक उस टाइम पे तो और ज्यादा होंगे. तो ये सब ओपन होते हैं. दीज आर द इश्यूज व्हिच यू कैन, एंड विद हैक्टोबरफेस्ट लेबल, सो यू कैन ट्राई फाइंडिंग आउट, एंड बेस्ड ऑन दैट जैसे गुड फर्स्ट इशू है, तो ये जो होंगे वो बिगनर फ्रेंडली होंगे, एंड द पीपल इन दीज ऑर्गेनाइजेशंस वुड बी वेरी वेलकमिंग, एंड they would actually encourage you because these would be very small tasks. Obviously they can do it on their own, but उनको थोड़े अच्छे कॉन्ट्रैक्ट बड़े बड़े टास्क करने होते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उसमें बिजी होता है. दे लेवल दिस एज अ गुड फर्स्ट इशू, and they even accept multiple PRA pull requests. So if you want to just contribute, if you want to like get T, then if you want to just contribute, they are open for that. So it's not like कि वो जब सिर्फ एक बंदे को ही असाइन करेंगे या नहीं, बहुत सारे होते हैं. जैसे भी लाइव सिंक पाइथन था, इसमें कुछ देख लो आप, कितने सारे लोगों ने कमेंट किया है, इतने सारे लोगों ने कमेंट किया, कितने सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया होगा इसमें. बट फिर वही यार, तुम अगर चाहो तो तुम इजी तरीके से कर सकते हो, फिर तुम कुछ सीखोगे नहीं. अगर तुम्हें कुछ नया सीखना है तो दिस कैन बी प्रीटी गुड, लाइक गुड वे. तो ऐसे आप चले इज ओपन इज इशू ऑलरेडी होंगे, बट यहाँ पे तुमको एडिट करके लेबल
and Hacktoberfest लिखना है, then you will kind of see all these issues and then just start contributing. You need to make 4 contributions and that is pretty less, like काफी कम है, but that's a pretty good encouragement. तो जैसे तुम देखते हो तुम्हारा merge हो गया pull request, तो बहुत सही लगता है तुम्हें. And they have these nice animations also. अभी तो वो वेबसाइट डाउन हो गई है, वरना मैं तुम्हें उस लॉग इन करके दिखा सकता था कि हाँ ये ऐसा होता है. बहुत इंटरेस्टिंग होता है उसमें. उनका जो प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट है, जहाँ पे तो तुम्हें गिटहब से कनेक्ट करना होता है हैकटोबरफेस्ट को. उनको परमिशन देनी होती है. व्हेनेवर यू क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट, वो उनके उसमें भी दिखता है. तुम्हारा एक डैशबोर्ड टाइप का होगा, उसमें दिखता है कि यू हैव क्रिएटेड अ पुल रिक्वेस्ट एंड ड्यू. फिर मर्ज होने पे एक ग्रीन टिक आता है, पेंडिंग होता है तो क्वेश्चन मार्क होता है. एंड देन दे हैव अ 14 डेज रिव्यू पीरियड. जैसे कि मैंने बताया था, 14 डेज में दे चेक कि तुमने एक्चुअली कोई मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन किया है या तुमने बस टेक्स्ट चेंज किया है या फिर ग्रामेटिकल एरर्स कम किया है. बिकॉज okay, those are contributions, but those are very very minor contributions. तो वो सब नहीं है. They actually, and बहुत सारी organizations होती है जो बहुत scam type की होती हैं कि तुम्हें हल्का सा से बोलेंगे स्पेसिंग चेंज कर दो वर्ड्स के बीच में या फिर इटैलिक्स कर दो इसको, और वो भी कंट्रीब्यूशन मानती है. तो वो सब बेसिकली नहीं, मत करो. मतलब तुम्हारा फायदा नहीं होगा, तुम कुछ सीखोगे नहीं. ऑल्सो टॉकिंग अबाउट वही एक सेकंड, एस बटन के लिए क्या था कि एज आई टोल्ड कि डिजाइनिंग आती है मुझे. तो अब एक ये था, हाँ, ये एक इशू था जो मुझे मिला था, इम्प्रूव द डिजाइन ऑफ द फुटर. तो इसमें मैंने कमेंट किया था, देखो, September 30, 2020. हे सो हाउ एग्जैक्टली डू वी कंट्रीब्यूट, वेयर कैन वी सी द करंट फुटर, आई एम न्यू टू दिस. जबकि इनकी वेबसाइट यहाँ पर उनके उसमें होम पेज पे ही कोड में जाओगे तो उनकी यहाँ पे वेबसाइट दिखेगी तुम्हें, github.io/patterns. बट फिर भी मुझे पता नहीं था कि वो बिल्कुल नया सा था. तो या मैंने बेसिक से सवाल पूछा था. देन दिस सी they're pretty welcoming. So hello Devansh, please check our website in this repository where you will see the footer. If you want to contribute, follow the contribution guidelines. If you need any further assistance, please let me know. So like if you actually see, and I think she's the owner of this repository. So they were pretty welcoming. And तुम अगर आंसर देखो ना तो लाइक हमारे जो मैसेजेस हैं वो भी बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं. तो ऐसा नहीं कि 1-2 दिन बाद रिप्लाई कर रहे हैं या फिर 10 दिन बाद रिप्लाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है. दे आर प्रीटी वेलकमिंग एंड प्रीटी एनकरेजिंग. And see, like they are replying to every person who has like written that. So I'll show you what I sent, what the pull request that I made. This is but she closed it. So I sent in a pull request. I showed her a design. So hey, you asked for a design of footer. I designed a full footer. Hope you like the concept. Pull request as an image which I designed, and I feel it will go well with the idea of the website. Hope you like it. Hi Devansh, thank you so much for your work. Unfortunately, we need the changes in HTML and CSS, not an image. I don't know. She said कि उसे सिर्फ design चाहिए, but I think she meant like actual HTML CSS all code. But I really appreciate your contribution, so I'm adding you to the contributors for design. If you have any other ideas and implementing code, please submit a new PR. फिर मैंने लाइट ले लिया. So basically, like she was like pretty good though. उसने मुझे as a designer add कर लिया, जबकि मेरे बहुत blue level skills थे. तो मैं अभी तुम्हें दिखा तो पा नहीं रहा हूँ कि एग्जैक्टली वो कैसा था, बट इट वाज प्रीटी गुड. लाइक काफी अच्छा डिजाइन किया था मैंने. आई वाज प्रीटी हैप्पी विद व्हाट आई डिड. बट या इट शी डिडंट मर्ज इट बिकॉज़ मर्ज कैसे करोगे, कोड चाहिए उसके लिए. थर्ड कंट्रीब्यूशन वाज लाइक अ लेजिट कमिट एंड काफी अच्छा, लाइक काफी कुछ सीखा इसमें मैंने. एंड इट वाज इन दिस code and snitch kind of this was a repository. And if you see, I am a contributor here, and मैंने अक्टूबर में किया था एक कंट्रीब्यूशन यहाँ पे. एंड exactly मैंने क्या किया था वो मैं दिखा देता हूँ. Yeah, see, so what I did was कि they wanted to, so they had a huge data set. Okay, they had a pretty good data set, and I had to import the data set, and then I had to put Python में basically क्या करना था कि एक फाइल में से मुझे पहले फोन नंबर्स एक्सट्रैक्ट करने थे, एंड उसको CSV फाइल से पहले उसको Python में लाना था, एंड उसको फिर बेसिकली फोन नंबर्स एक्सट्रैक्ट करने. तो एक सेंटेंस होगा बहुत बड़ा, एक जैसे दिस इज हाय माय नेम इज, बहुत बड़ा पैराग्राफ होगा, उसमें से जो भी इंस्टेंसेस है जहाँ पे फोन नंबर है ना, वो मुझे बस एक्सट्रैक्ट करने थे और सेव करना था. This was a pretty interesting project, and like काफी दिमाग लगा था इसमें. So see, like I sent that, and दो like changes कर रहे थे, commits किए थे, and he was like, there are the few changes I'll be suggesting, kindly put this, good job with the code. So he liked the code, and I did that. Then
I will merge it, but furthermore, you can try making GUI for this. Obviously, I didn't do this because मेरा तब semester बहुत hectic चल रहा था, and I think I didn't code the HTML and CSS वाला part also because मेरा semester के exams चल रहे थे and PT हो गई थी, but I really like doing this. मैंने किया था ये. Uh, exactly. See, so all contributors, P. Raj, Devansh Dixit, the code doc. I became a contributor for this too, and yeah, and I think I made in total around 7 contributions. Like मुझे सिर्फ 4 कर रहे थे, लेकिन मैंने 7 किए थे. एंड मैंने भी थोड़ा सा तिकड़म करने की कोशिश करी थी, तो एक में तो अगर इफ पॉसिबल हो तो मैं दिखा सकता, बट उसमें था फूड रेसिपीज थी, ठीक है. तो उसमें ना हमारा था कि हमें बस जेसॉन फाइल चेंज करनी थी, एंड दैट वाज काइंड ऑफ अ स्कैम कंट्रीब्यूशन. ओके, हमें एक जेसॉन फाइल चेंज करनी थी, एंड उस जेसॉन फाइल में बेसिकली इंडियन डिशेस का नाम था. तो उसमें एक जलजीरा था, और उसमें जलजीरा था, उसकी रेसिपी दी हुई थी. तो मैंने क्या किया था, वो जलजीरा और उसकी रेसिपी कॉपी करके पेस्ट करी थी जेसॉन फाइल में, एंड उसमें मैंने जलजीरा की जगह कोल्ड जलजीरा कर दिया था नाम, कोल्ड जलजीरा, एंड बाकी सब सेम था एग्जैक्टली. और फिर मैंने पुल रिक्वेस्ट मार दी थी. तो जो उसका कंट्रीब्यूटर था वो लिखता है कि इट इज मैचिंग विद वन ऑफ द दिस करके, और उसके बाद मैंने लाइट ले लिया था. बट एक्सेप्ट फ्रॉम दैट, आई थिंक 6 ऑफ माई कॉन्ट्रीब्यूशंस गॉट एक्सेप्टेड, एंड वो हैकटोबरफेस्ट में 6 आउट ऑफ 7 दिखा रहा था, बिकॉज एक मेरा ऑब्वियसली रिजेक्ट हो गया था. तो उसमें क्रॉस आ जाता है सीधा अगर वो तुम्हें कैंसिल कर देते हैं. तो उसका इंटरफेस भी काफी अच्छा है. अभी तो उन्होंने बंद कर दिया. जैसा मैं अभी हैकटोबरफेस्ट दिखाऊं, तो हैकटोबरफेस्ट 2020 पे सबसे पहले वही लिंक आता है जिसमें मैं लॉग इन कर जाता एंड फिर हो जाता था, बट अभी तो उन्होंने पूरा पेज रीलोड कर दिया है. सो यू हैव अराउंड 222 days for Hacktoberfest 2021. And for all those who are looking to open source, like to contribute open source, if you are in your first year especially, this can be a pretty good opportunity to kind of explore this whole interesting domain, because essentially it's kind of similar to software development. कि एक बहुत बड़ा कोड बेस होगा जिसका तुम्हें कुछ खास पता नहीं होगा, एंड उसके बग्स होंगे, इश्यूज होंगे जो तुम्हें सॉल्व करना है. If you're into that, and if you want to get a real life experience, then obviously participate in Hacktoberfest 2021. And yeah, it should, and they obviously, and like in the video when they obviously give you good gigs and swags, as they like to call it, and एक अच्छी t-shirt भी मिलती है, काफी soft और काफी अच्छी quality की है. So I'm extremely happy that I participated and I learned a lot. And एक बार तुम ओपन सोर्स में आने लगते हो, तुम्हें पता चलता है कि हाँ काफी सही फील्ड है. फिर तुम और ऑर्गेनाइजेशन और वो होते हैं जैसे GSoC हो गया और बहुत सारी चीजें हो गई, उसके बारे में भी सीखने लगोगे और फिर कंट्रीब्यूट करने लगोगे. काफी अच्छा लगता है. So I hope you learned something and I hope you saw the contributions that I made and कितने basic थे वो. And उस टाइम पे तो मुझे ज़्यादा कुछ skills भी नहीं थे, like बस Python आता था थोड़ा बहुत, C++ भी भूल ही गया था मैं, like second year के start में तो कुछ नहीं याद था, ML आता था थोड़ा, and basic contributions किए थे बस. So yeah, that was, and it was a pretty basic stage and still I was able to complete it. So it's just pure मेहनत, and if you are able to give that, if you are able to do that, तो तुम्हारा confidence काफ़ी बढ़ जाता है, you feel much more confident. And हाँ, then I also, अब तो मुझे लग रहा है कि see, so now I know कि उसके बाद I also cleared GSoC, which wasn't at all easy when I used to think back then. एक साल पहले if you would have said कि भाई तेरा GSoC हो जाएगा, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई ये possible नहीं है, because मैं बहुत शुरुआत में था and Hacktoberfest gave me the initial push. Also, one more thing is that Codedam is participating in Hacktoberfest. Codedam is a startup of my senior Noel Mohan. उनका एक channel भी है. I'll link his channel in the description. And they are also participating in Hacktoberfest. You have to create a project, and based on that, if you successfully are able to create that project, they uh, give you a free T-shirt. So yeah, go check that out. I'll put the exact message and everything in the description. So yeah, thanks for watching, guys. See you. Bye.